الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيه وشر ما أرسلت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ہم نے ہوائیں بھیجی آسمان سے، وانزلنا من السماء ماء طہورا، آسمان سے پاک پانی برسایا، ہوائیں بھیجی، وہو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ہوائیں خوشخبریاں دے کر بھیجی، اور پانی ہم نے پاک نازل کیا۔ اس پانی کا فائدہ کیا ہے؟ لنحیی بہ بلدۃ میتا، تاکہ ہم اس سے مردہ شہروں کو یعنی مردہ زمینوں کو زندہ کریں۔ ونسقیہ مما خلقنا انعاما واناسیا کثیرا، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی مخلوق میں سے جو انسان ہیں اور جو جانور ہیں ان کو بھی سیراب کریں۔ تو اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، آسمان سے پانی اترتا ہے، یہ مالک کا انعام ہے، مالک کی طرف سے رحمت ہے، اور عام طور پر سے ہمیں اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ گزشتہ اقوام میں بہت ساری قوموں پر عذاب کی شکل میں بھی نازل ہوا ہے، کیونکہ یہی پانی، یہی بارشیں، یہی ہوائیں، یہی سمندر، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہیں، لیکن جب اللہ چاہے تو رحمت کے طور پر ان کو بھیج دیتا ہے، جب چاہے اللہ عذاب کے طور پر بھیج دیتا ہے، مالک کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں ہمارے لیے کیا ہے حکم؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے؟ بارش نہ ہو تو کیا کریں، بارش ہو تو کیا کریں، زیادہ ہو تو کیا کریں، وہ سارے کے سارے آپ علیہ السلام نے ہمیں موقع محل کے طریقے، دعائیں، سارا کچھ سکھلایا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں اکثر خطوں میں اس وقت گزشتہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ سے ایک سیزن بارش کا ہے، بہت زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں، بعض علاقوں میں طوفانی کیفیت ہے، سیلابی کیفیت ہے، بعض علاقوں میں کم ہے۔
تو اس موقع پہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، دوران خطبہ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ دعا کیجئے بارش ہو جائے، جانور مر رہے ہیں، ہمارے گھوڑے سواریاں مر رہے ہیں، بکریاں مر رہی ہیں، ظاہر بات ہے انسان بھی متاثر ہوتا ہے، جانور بھی متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے کمزور مخلوق کے صدقے سے انعامات فرماتے ہیں، بے زبان مخلوق کے صدقے سے انعام فرماتے ہیں۔ جیسے کہ روایت کے الفاظ ہیں، لولا البہائم لم تمطر، اگر یہ جانور نہ ہوتے کہ تو تمہیں بارش نہ دی جاتی۔ تو اللہ بسا اوقات کمزور مخلوق کے صدقے سے ایک انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ بارش، دعا کیجئے بارش آ جائے، پیاسے مر گئے، قحط آ گیا، ہر طرف جو ہے وہ ضرورت بارش نہ ہو، اگر ہمیں بھی بارش نہ ملے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ سب سے بڑا ہماری صحت کا نقصان، بیماریاں سر اٹھاتی ہیں، پانی کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، جو ہم زمین سے بھی لے رہے ہیں وہ بھی لیول ڈاؤن چلا جاتا ہے، فصلوں کا نقصان ہوتا ہے، کھیتیوں کا نقصان ہوتا ہے، مصنوعی طریقے سے جتنا بھی پانی لگائیں وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو قدرتی طریقے سے پانی کا فائدہ ہوتا ہے۔ پھولوں پھلوں کھیتیوں ہر چیز کا نقصان ہے اگر بارش نہ آئے، زمین پر ایک قحط کی کیفیت، تو بارش نہ آئے تب بھی ظاہر سی بات ہے بڑا ایک نقصان ہے۔ تو یا رسول اللہ دعا کریں بارش آ جائے، جانور مر رہے ہیں۔ اللہ کے پاک عمر علیہ السلام نے دعا فرما دی کہ اللہ بارش عطا فرما، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا عاجلا غیر آجل نافعا غیر ضار۔ یا اللہ ہمیں مختلف دعائیں منقول ہیں آپ علیہ السلام سے کہ اللہ ہمیں وافر بارش عطا فرما جو تر و تازگی کا سبب بنے، جو نفع مند ہو، نقصان دینا ہو، فوری آ جائے، دیر نہ ہو۔ یہ آپ علیہ السلام، ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام ایسی دعا کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ علیہ السلام کی دعا کو نقل کر سکتے ہیں کہ جلدی آ جائے، فوری، عاجلاً غیر عاجل۔ آپ علیہ السلام کی دعا کرنے کی دیر تھی، کوئی موسم نہیں تھا، کوئی آثار و علامات نہیں تھے، کوئی ایسا دور دور تک اثرات نہیں تھے، اللہ کی شان فوراً منظر اور فوراً جو ہے وہ چینج ہو گیا، مطلع چینج ہو گیا، حالات چینج ہو گئے، فوراً بادلوں کی ہواؤں کی کیفیت شروع ہو گئی اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کی شان میں بارش اتنی برسی اتنی برسی اتنی برسی، آئندہ جمعے تک بارش ہوتی ہے۔ آئندہ جب جمعہ آیا پھر وہی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہو گیا، رسول اللہ دعا کریں بارش رک جائے، بارش رک جائے کہ گھر گر گئے ہیں، کھیتیاں ڈوب گئی ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے پھر پانی پانی، جیسے راول پنڈی کا دکھا رہے تھے کہ ڈوب گیا سارا، سڑکیں روڈ اور گاڑیاں بہ رہی ہیں، اور اس قسم کی کیفیت ہوتی ہے، موٹر وے ڈوب رہا ہے، فلاں گھر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی منزلوں تک پانی آ چکا ہے، یعنی کہ ظاہر بات ہے مسلسل جب ہو رہی ہے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ پھر تو یا رسول اللہ دعا کریں سارا کچھ بہ گیا، ان کے عام الفاظ میں گھر گر گئے اور بڑا جی آپ دعا کے رسول اللہ بارش رک جائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا فرما دی، بارش رک گئی۔ بارش ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم الآکام والآجام والزراب والاودیاء ومنابت الشجر، یا اللہ یہ بارش ہمارے ہاں نہ ہو، آس پاس چلی جائے جہاں ضرورت ہے، پہاڑوں پہ چلی جائے، ندیوں میں چلی جائے، جہاں درخت اگ رہے ہیں جن کو ضرورت ہے وہاں پہ چلی جائے، آکام والاجام والزراب والاودیاء ومنابت الشجر، یا اللہ جہاں ان کی ضرورت ہے پہاڑوں پہ چلی جائے، ندی نالوں میں چلی جائے، درخت اگنے کی جگہ پہ چلی جائے، اور وہاں پہ چلی جائے، ہم سے ہٹا دیں۔ اللہ نے بارش روک دی۔ تو مقصد کیا ہے کہ بارش کا آنا نہ آنا بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور زیادہ آنا بھی نقصان دہ ہے، تو اس لیے اللہ اس سے جب بھی مانگے یا اللہ اس کو رحمت کی بارش برسا، ہمارے لیے نقصان کا باعث نہ بنا، نقصان کا جو بیچارے غریب غربا ہیں جن کے چھتیں کچی ہیں، جو
यानी कि तबका अहले सरवत का है, जो माशाल्लाह जिनको अल्लाह ने दे रखा है, अब उनके लिए तो ये इंजॉय है, खाना पीना, चलो मौसम अच्छा हो गया, अब वो सोचते हैं डिशें कौन सी बनाएं, मौसम अच्छा है डिशें कौन सी बिछाएं। लेकिन जो बेचारा गरीब है वो कहते हैं हम छत कैसे बचाएं, हम छत कैसे बचाएं। तो उनके लिए परेशानी का सबब होता है, किसी की छत लीक कर रही है, किसी की गिर गई, किसी की दीवार गिर गई, किसी का और नुकसान हो गया, कई बेचारी फैमिली छतों के नीचे आ जाती हैं। तो ये चीजें उनके लिए होती हैं। तो जब ये बारिश आए तो फिर उसके लिए अल्लाह से इसको रहमत मांगे, अल्लाह इसको रहमत भी बनाना हमारे लिए, इस बारिश को रहमत बना देना रहमत। इसलिए फरमाया कि जब बारिश हो रही हो तो क्या दुआ होनी चाहिए, मुतरना बिरहमतिल्लाह या मुतरना बिफज़लिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से हमें बारिश दी, कि अल्लाह इसको रहमत बना देना। इसलिए आप अलैहिस्सलाम फरमाया जब हवाएं तेज चलती थी आप अलैहिस्सलाम उस वक्त भी दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा जअलहा रियाहन वला तजअलहा रीहन, अल्लाहुम्मा जअलहा रहमतन वला तजअलहा इक़ाबन या अज़ाबन, कि अल्लाह इसको रहमत बनाना ज़हमत ना बनाना। क्योंकि ऐसी कौमें भी गुजरी हैं जिन पर तेज हवाएं बादल आए थे और वो खुश हो गए थे कि बारिश आएगी, लेकिन फिर आग बरसी थी, फिर अज़ाब आया। फलम्मा राहू आरिज़न मुस्तक़बिल अवदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिज़ुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रिहन फ़ीही अज़ाबुन अलीम। कौम आद का कुरान ने सूरह अहक़ाफ़ के अंदर जिक्र किया तो इन्होंने बादल देखा तो बड़े खुश हुए, सारे बाहर निकल आए कि ये बादल आ गया है, अब बारिश बरसेगी। अल्लाह फरमाते हैं इन्हें बड़ी जल्दी है बारिश की, रीहुन फ़ीहा अज़ाबुन अलीम, ये ऐसी हवा होगी जिसमें दर्दनाक अज़ाब होगा, यानी कि इनके लिए अज़ाब की शक्ल है। कौम नूह पर बारिश बरसी थी, वो भी अज़ाब की शक्ल थी, अल्लाह ने उनको अज़ाब बनाकर और सबको गर्क कर दिया, सिवाय इसके जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की बात को माना। इसी तरह कौम सबा थी, अल्लाह ने उन पर बारिश और सैलाब भेजा, उनको गर्क कर दिया। लक़द कान लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतान अन यमीन व शिमाल कुलू मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहू बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर फ़अरदू फ़अरसलना अलैहिम सैलल आरिम व बद्दलनाहुम बिजन्नतैहिम जन्नतैन। वो सारा का सारा इसमें कौम सबा का अल्लाह ने बड़ी नेमतें दे रखी थी, खा रहे थे, पी रहे थे, अय्याशी से आराम से रह रहे थे। ऐसे बागात थे कि अगर बंदा रास्ते पर चले और सर पे कोई बर्तन रख के चले तो फल गिर गिर के खुद वो बर्तन भर जाए, इतने मजे थे उनके। लेकिन नाशुक्री पे आ गए, नाशुक्री पे, वहीं पे काम, वहीं पे घर, बड़े आराम से रह रहे, लेकिन नाशुक्री पे आ गए। जिस तरह बंदे का घर भी साथ हो, ऑफिस भी साथ हो, घर भी साथ है, मुलाजमत भी साथ है, घर भी साथ है, कारोबार भी साथ है, तो ये भी एक बड़ा एक नेमत होती है। कितने लोग होते हैं जो मुलाजमतों के लिए कितने किलोमीटरों का सफर करते हैं, अपनी फैक्ट्रियों के लिए कितने किलोमीटर का सफर करते हैं और मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं। कोई शहर में जाता है, कोई शहर से बाहर जाता है, कोई कहीं जाता है, घर कहीं पे है, मुलाजमत कहीं पे, घर कहीं पे है, ऑफिस कहीं पे, घर कहीं पे, फैक्ट्री कहीं पे, दूर दराज के सफर तय करते हैं। उनके लिए घर भी वही था और उनके कामकाज भी वही थे। तो उन्होंने क्या कहा, रब्बना बाइद बैना अस्फारिना, या अल्लाह हमारा सफर दूर कर दे, हमारा डिस्टेंस बढ़ा दे, हम दूर जाएं। इस किस्म की बातें उन्होंने की। तो फिर अल्लाह ने उनको सैलाब दिया, तूफान दिया और फिर वो सारे के सारे गर्क हो गए और बह गए। बड़े बड़े डैम भी बनाए थे, बड़े बड़े डैम उन्होंने बनाए थे, लेकिन वही उनकी हलाकत का सबब बन गया। तो मकसद ये है कि बारिश ज़हमत भी है, रहमत भी है, लेकिन हमने इसको मांगना है, या अल्लाह इसको रहमत बना। नहीं आ रही तो अल्लाह से मांगना है। अल्लाहुम्मा अस्क़ि, आप अलैहि सलाम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहीमतका वंशुर रहमतका व अही बलदकल मय्यिता, या अल्लाह अपनी रहमत को, अपने बंदों को सैराब कर दे, बारिश दे दे। अल्लाहुम्मा अस्क़ि इबादका व बहीमतका, या अल्लाह अपने चौपाए जानवरों को सैराब कर दे। वंशुर रहमतका, या अल्लाह अपनी रहमत को फैला दे, आम कर दे। वाही बलदकल मय्यिता, या अल्लाह बंजर जमीनों को जिंदा कर दे, उनको बारिश के जरिए तरोताजा कर दे। आप अलैहिस्सलाम ने दुआ भी मांगी। जब आ गई, तेज आ गई, फिर दुआ सिखाई कि अब अल्लाह से मांगना है कि अल्लाह अब हमें इसकी जरूरत नहीं, अब कहीं और पे बरसा दे। आंधी तूफान आ गया, फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने दुआ सिखाई कि दुआ करो जब तेज आंधी तूफान आ जाए तो उस वक्त भी दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका खैरहा, या अल्लाह इस हवा से हमें खैर अता करो, व खैरा मा उरसिलत बिही,
वखैर मा फीहा वखैर मा उरसिलत, और इस हवा में भी खैर रख दे, और जो इसके साथ चीज आई है यानी कि बारिश आई है जो भी है उसके अंदर भी खैर रख दे। वाउज़ बिका मिन शर्रिहा, या अल्लाह हमें इसके शर से, अजाब से, इसकी जहमत से बचा, और जो इसके अंदर अजाब है उससे बचा, और जो इसके साथ अजाब आने वाला है उससे हम सबको बचा। क्योंकि जब ऐसी आंधी की या इस किस्म की बादलों की कैफियत होती, आप अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर का रंग मुतगय्यर होता, आप बड़े बेचैन हो जाते हैं, घर में जा रहे हैं, कभी बाहर आ रहे हैं, कभी मस्जिद जा रहे हैं, कभी बाहर, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं। तो ये दुआ हमें सिखाई। बिजली कड़कती थी, आप अलैहिस्सलाम तब भी दुआ करते, अल्लाहुम्मा रब्बना ला तख्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। अल्लाह हमें अपने गजब से कत्ल ना करना, गजब से, गुस्से से ना मार, अपने अजाब से हलाक ना करना। अल्लाह हमें आफियत अता फरमा, हमें आफियत अता फरमा। क्योंकि बिजली की कड़क, बिजली भी क्या है, कितने लोगों के कई दफा ऐसे वाक़ात होते हैं, लोगों पर गिरी बेचारे भस्म हो गए, किसी चीज पर गिरी भस्म हो गई, तो या अल्लाह इस अजाब से हमें हलाक ना करना। ला तक़्तुलना बिग़ज़बिक व ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व आफ़िना क़ब्ल, अल्लाह हमें आफियत अता फरमा। तो इन मौकों की आप अलैहिस्सलाम ने दुआ की, और फिर जब बारिश हो रही हो, ये दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। एक रिवायत में है कि सिमतान ला तुरद्दान, कि दो मौके ऐसे हैं जिनमें दुआएं रद्द नहीं जाती, इंदल निदा व तहतल मतर या इंदल मतर, कि एक तो आजान के वक्त और एक बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। इस बारिश में अल्लाह से आफियत, खैरियत, सलामती, बाकी जो दुआ मांगने अल्लाह से मांगे, अल्लाह से मांगी। तो इसलिए, और इसी तरह बारिश के अंदर भीगना, भीगना ये भी आप अलैहिस्सलाम से साबित, जैसे नहाते हैं बारिश में, बारिश में आप नहाते हैं, तो सैयदना अनस ही फरमाते हैं कि एक दफा हम खड़े थे, बारिश आ गई, आप अलैहिस्सलाम ने अपना पल्लू आगे करके बारिश में होकर अपने आप को गीला किया। तो साहबा ने सवाल किया, रसूलल्लाह लिमा सनाता हाज़ा, आपने ऐसा क्यों किया? फरमाया कि ये बारिश अल्लाह के पास से होकर के आई है, अल्लाह की रहमत का फायदा उठाने के लिए हमने ऐसा किया। तो इससे ये मालूम होता है बारिश में आप नहा भी सकते हैं। हाँ, ये है कि वो बंदा फिर अपनी बीमारी का, सेहत का, उसका और चीजों का ख्याल करते हुए, माहौल का, लेकिन ये आप अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया। बाकी बारिश के वक्त एहतियाती तदाबीर का अपनाना, बारिश के वक्त एहतियाती तदाबीर का, घरों के अंदर भी बाहर भी एहतियात बहुत जरूरी है। खासकर अब ये जो कैफियत है सैलाब की और रोडों पे पानी है और अजीब कैफियत है, इसमें हमने दूसरों का भी ख्याल करना है, अपना भी बचाव रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है। रोड पे आप चल रहे हैं तो उसमें कोशिश करें किसी के लिए ईज़ा का सबब ना बने। गाड़ी में बेसावत बंदा जा रहा होता है, तेजी से पानी खड़ा है, उसमें से तेजी से गुजरा तो दाएं बाएं जितने भी हैं सारे बेचारे भीग गए, उनके ऊपर पानी गिरा। तो इसका हमने कोशिश करना है कि रोड पर, खासकर वैसे भी पानी में गाड़ी भी आहिस्ता चलानी चाहिए, उसकी अपनी भी सेफ्टी है, क्योंकि जब पानी में आप गाड़ी तेज चलाते हैं उसकी रोड ग्रिप नहीं रहती, कई दफा गाड़ियां दाएं बाएं हो जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। इस लिहाज से भी खतरनाक है, और इस लिहाज से भी कि जो दाएं बाएं बेचारे बाइक पर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वैसे को जा रहे हैं, उसके ऊपर पानी गिरेगा, वो बेचारा फिर उसकी जो कैफियत होगी वो फिर आप अंदाजा नहीं कर सकते। वो फिर जो सलवातें सुनाएगा, जैसे बाबे ने बेचारे ने सुनाई थी, फंस गया था। तो इन चीजों का ख्याल किया जाए। और जो बाइक वाले हैं उनके लिए भी कोशिश होनी चाहिए। कई दफा होता है बाइक जा रही है, पीछे जो वो उसकी जो टेल होती है वो नहीं होती, पीछे जो भी आ रहा है उस पर जनाब सारा का सारा फुवार उस पर चढ़ जाए। तो इनको भी ख्याल करना चाहिए, 20, 25, 30, 40, 50 रुपए लगा के वो पीछे जो टेल लगी होती है दुमची वो लगवा लें, ताकि किसी को नुकसान ना हो, नुकसान ना हो। इसी तरह से जो बरकी आलात हैं या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जैसे खंबे हैं, घर के दरवाजे के साथ कई दफा खंबा है या कोई ऐसा दरख्त है, एहतियात करें, करीब ना जाएं, हाथ ना लगाएं, बहुत एहतियात करें, ऐसी चीजों को हाथ ना लगाएं। बल्कि आमतौर पर घरों की जो बेलें लगी होती हैं अक्सर इनमें करंट आ जाता है, तो इस पर भी एहतियात करें। घर के अंदर जो चीजें हैं बच्चों को खासकर इनसे दूर रखें, बारिश के मौसम में ऐसी चीजों से बच्चों को दूर रखें और बच्चों पर कड़ी नजर रखें।
कि वो कहीं ऐसा ना हो कि किसी बरकी चीज को हाथ लगाएं और खुदा ना खास्ता हो तो बेचारे बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों का बारिश के मौसम में ख्याल करें। अगर किसी के साथ कोई ऐसा वाकया हो जाता है, जैसे कोई करंट की सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो उसको फौरन ना पकड़े। इधर होता बंदा जल्दी में उसको पकड़ लेता है, उसको पकड़ लेता है, खुद भी फंस। तो ऐसे जो है वो मौके पर अपने आप को संभाल के किसी को बचाएं जरूर। ये नहीं कि जैसे आजकल हमारा रिवाज है, बचाने की बजाय पहले वीडियो शूटिंग हो जाए, बाकी काम बाद। कोशिश करें पहले किसी की जान बचाएं, किसी की जान बचाएं। कोई बेचारा गिर गया है बारिश में, सैलाब में, स्लिप होकर, वैसे क्योंकि जाहिर बात है जब हल्की बारिश होती है तो रोड भी स्लिपरी होते हैं, बंदा स्लिप हो जाता है, बाइक वाला स्लिप हो जाता है। तो इसमें एहतियात, जितनी एहतियात करेंगे हमारा ही फायदा है, जितनी एहतियात करेंगे हमारा ही फायदा है। तो इसलिए कोशिश किया करें ऐसे मौसम के अंदर अपने आप को बचाएं, दुआओं का इत्माम रखें। आप अलैहिस्सलाम ने हमें मौका मौका की दुआएं सिखाई हैं। बारिश अब जैसे बहुत ज्यादा हो रही है, अल्लाह से आफियत मांगते हैं कि अल्लाह इसको रोक दे, या अल्लाह इसको हमारे आसपास कहीं बरसा जहां पे किसी का नुकसान ना हो। जिम्मेदार का बड़ा नुकसान होता है। जब बारिश नहीं होती उसको बेचारे को तब भी जरूरत होती है। जब बारिश ज्यादा, हद से ज्यादा आ जाए, मिसाल के तौर पर अब जब वो चावल और मुंजी लगाने का सीजन है तो पहले पनीरियां लगाई जाती हैं, उसको फिर उखाड़ के फिर मुंजी जो है वो लगाई जाती है। अब कितने लोग हैं बेचारों की पनीरियां डूब गई हैं। अब वो जब पानी में डूब जाती हैं, दोबारा फिर जब धूप निकलती है वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। अब उनके लिए, बेचारों के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए ऐसे मौके पर दुआ है, या अल्लाह आफियत अता, अपना फजल फरमा, या अल्लाह हमें नुकसान से बचा। जिसका बेचारे का नुकसान हुआ है, या अल्लाह उसको महफूज फरमा। आम जो गरीब गुरबा बेचारे गरीब तबका होता है, इसी तरह से इस मौके पर जो दिहाड़ीदार बंदा होता है, जिसना जो डेली वेजेस पे होता है, जो बेचारे ने कमाना है तो शाम को खाना है, उन लोगों का ख्याल करना चाहिए कि दिहाड़ी लगती नहीं। दिहाड़ी, इतने लोगों का काम ऐसे मौके पे ठप हो जाता है। मिसाल जिसने कंस्ट्रक्शन के साथ दिहाड़ी करनी है, अब वो काम चलेगा नहीं, वो डेली वेजेस बेचारा कमाएगा नहीं, खाएगा कहां से? उसने डेली शाम को किलो 1.5 किलो आटा लेके जाना है, अब उसका कोई इंतजाम नहीं। तो अगर ऐसा कोई आपकी नजर में हो, ऐसे लोगों का भी इस मौके पे ख्याल करना चाहिए। तो इसलिए ऐसे मौकों पर इज्तिमाई सोच सोचनी चाहिए। एक है मेरी इनफरादी सोच कि बारिश आएगी, मैं जो है वो पकोड़े खाऊंगा, समोसे खाऊंगा, हलवा खाऊंगा, फुला बनाएंगे, ये एंजॉय करें। और एक भी इज्तिमाई सोच है कि मैं तो खा रहा हूं, मेरी छत का भी अल्लाह का शुक्र है मसला नहीं है, और मेरे फैमिली बच्चों का भी कोई मसला नहीं है। एक वो है जो बारिश में घर के कोने में दुबक के बैठा हुआ है, कमाने का भी नहीं है, पकोड़े तो दूर की बात है, सालन भी तैयार नहीं हो रहा, रोटी भी नहीं हो रही, रूटीन की रोटी भी उनकी नहीं है। तो हमें इज्तिमाई सोच सोचनी है कि एक मेरा पेट है, एक मेरी छत है, एक मेरी फैमिली है, और एक मेरे मुसलमान भाई का पेट है, उसके बच्चे, उसकी फैमिली है, उसका घर है, उसकी छत है। तो इसलिए ऐसे मौकों पर इज्तिमाई सोच होनी चाहिए कि हम दूसरों का भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें, उनका जो है वो चूल्हा जले, उनके बच्चे भी खाएं, और उनकी भी जो है वो छत का जब वो इंतजाम सही रहे, उनके साथ भी मामलात सही रहे। तो बात है, तो ये चंद चीजें हैं बारिश के हवाले से कि सबसे बड़ी चीज तो हमारा हथियार जो है वो दुआ है। सबसे बड़ा हथियार हमारे पास क्या है? बारिश का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अब पानी खड़ा होता है, इसको हर मामले को पॉलिटिकल ना बनाया करें। अब दो तबके हमारे हर दौर में ही होते हैं, एक हुकूमत वाला होता है, एक ऑपोजिशन वाला होता है। जो हुकूमत वालों के साथ होते हैं उनको खैर खैर नजर आ रही होती है, उनके यहाँ तो सब अच्छा चल रहा होता है, सब ठीक है। और जो ऑपोजिशन वाले होते हैं उनके यहाँ जंग लगी होती है, उनके यहाँ तो हर वक्त मुल्क डूब रहा होता है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम अवामी, मैं और आप, हम बजाय इसके कि सियासी बने, हम उस नजरिए से देखें कि क्या फायदा है क्या नुकसान है, उनकी लड़ाइयों को ऊपर छोड़ दें। अब देखें, अब मिसाल के तौर पर इस दौर में अगर पेट्रोल महंगा होगा तो जो इस जमात के साथ है उनको लगेगा ही नहीं, वो कहेंगे फलां वजह से हुआ, फलां वजह से हुआ, वो उसकी जो है वो तावीलें देंगे, रीजन देंगे। उनके यहाँ पेट्रोल महंगाई है, कोई और महंगाई उनके यहाँ कुछ नहीं। लेकिन जो मुकाबले में है वो कहते हैं देखो लूट के खा गए, पेट्रोल महंगा कर दिया, 5 महंगा कर दिया, 7 महंगा कर, उनके यहाँ ये है। और कल को जब यही साइकिल चेंज होगा, ये वाले इधर आ जाएंगे, फिर इनके यहाँ जो होता रहेगा इनको महंगाई लगेगी। तो भाई हमें जो अपने लिहाज से चलना है, हमें ऊपर वालों के लिहाज से नहीं चलना। जो गलत है गलत है, जो ठीक है ठीक है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, सबको दुख होता है, गलत है।
कोई और महंगाई हो रही है, गलत है। इंतजाम ठीक नहीं, गलत है। जो ठीक हो रहा है उसको ठीक कहें, जो गलत हो रहा है उसको गलत कहें, बजाय इसके कि किसी के पीछे लग के करें। अब आमतौर पर बाजारों में, सड़कों में पानी और ये कैफियत है, जब एक मामला इतनी ज्यादा बारिश होती है तो थोड़ा मामला डिस्टर्ब हो जाता है, हर जगह पे होता है, ये नहीं पाकिस्तान हर जगह। उसको बर्दाश्त करना सीखें। अपने आप में भी हम ये भी समझ रहे होते हैं कि हम खुद भी तो कुछ हेल्पर बने, हम एक दूसरे के हेल्पिंग हैंड बने, अपने आप में भी तो कुछ करें। हम कहते हैं सारा कुछ हमारे घर के कूड़े भी जो है वो गवर्नमेंट ही उठाए, खुद भी अपनी मदद आपके तहत कोशिश करें। और जो बाकी कमी कुताही है, ठीक है, जो गलत है गलत है, गलत है, लेकिन ऐसी गालन गलोच और जनाब नीचा दिखाना किसी को और मारे को गालियां निकालना, ये ठीक नहीं है। उसका फिर गलत असर और गलत नतीजा भी निकलता है। तो ऐसे मौकों पर अपने आप में भी बचाएं, अपने आप को भी कोशिश रखें, घर में रहें, अपने काम पे रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, दुआओं का एहतमाम करें। या अल्लाह जो बारिश है इसको रहमत बना, इसको हमारे लिए बायसे खैर बना, और जो इसके अंदर कोई नुकसान है या अल्लाह उसको शर से, नुकसान से हम सबको, हमारे भाइयों को, मुसलमानों को, हमारे बच्चों को, गुरबा को, सबको महफूज फरमा। तो ऐसे मौकों पर अल्लाह से दुआओं का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा।